Lovely students, I welcome you all in English class. Today we are going to take 5th revision video for 11th class in English subject. I have given you 4 video before this and I am very happy and grateful to you that you all had given me a great response. The views are mind blowing for 11th class. आपने बहुत अच्छे वीडियो देखी, मैं रियली आभारी हूँ आपका इस चीज के लिए और प्लीज आप ऐसे ही इस चीज को बरकरार रखें, अपनी वीडियोस देखते रहें, हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है ना। So you all know that tomorrow onwards you all are going to appear in first major test. Schedules and syllabus have also been described by all the teachers in their respective subjects. In English also I have told you the syllabus. Still I will repeat the syllabus in this video and we will have a revision of 2 chapters, Ranga's marriage and Albert Einstein at school. These 2 lessons are the 3rd and 4th lessons of our book Snapshots. So let's talk about the syllabus that will be a part of the major test of English. In the book Hornbill, I have given you first 2 chapters that you will see in the exam. Number first is the portrait of a lady. Portrait of a lady. Second one is we are not afraid to die if we all can be together. Then we take the poems. The first poem is a photograph. Next poem is the laburnum top. The next poem is Voice of Rain. The Voice of Rain. And then I have taken first 4th chapter of our book, that is the snapshots, right? In this book we have taken first 4th chapter. मैं यहाँ लिख रहा हूँ. First chapter is the summer of a beautiful white horse. Summer of a beautiful white horse. Second chapter is the address by Margot Minko. Next chapter is Ranga's marriage and the 4th lesson is Albert Einstein at school. So snapshots में हमने 4 chapters लिए हैं, आप देख सकते हैं. So students, these are 9 topics that will be in our coming major test. I am repeating: the portrait of a lady, we are not afraid to die if we all can be together, a photograph poem, the laburnum top poem, the voice of rain, this is also a poem, the summer of the beautiful white horse, the address, Ranga's marriage and Albert Einstein at school. मैं एक बात और बता देता हूँ आप सभी को कि इस टेस्ट के अंदर वर्ड मीनिंग भी देंगे. कम से कम एक चैप्टर, एक टॉपिक में से एक वर्ड मीनिंग तो पूछूंगा, ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आप वर्ड मीनिंग के ऊपर भी फोकस करें. 9 टॉपिक है तो ये मान लो लगभग 10 वर्ड मीनिंग तो पूछे ही जाएंगे. चैप्टर्स के राइटर के नाम पूछ सकते हैं, पोएम का पोएट का नाम भी पूछा जा सकता है. तो आप जो है इन सब चीजों का ध्यान रखें. और सीबीएसई ने सिलेबस कुछ कम किया है, तो मैंने चेक कर रहा था, मैं जो सिलेबस कम किया है वो सिलेबस आगे चल के हमें देखना पड़ेगा. अभी जो इस टेस्ट में जो भी टॉपिक्स आएंगे वो अभी फिलहाल
इस एकेडमिक सेशन के का हिस्सा है वो टॉपिक्स, ठीक है ना। तो रंगास मैरिज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर, इन दिस लेसन वी हैव three major character and one is additional character. Number 1 is Ranga, that is the main character. The second one is Ratna. Third one is the Shyama. Shyama is the narrator of this lesson, and the fourth is Shastri. Right? So in this chapter, Ranga is the boy of an accountant. Ratna is a beautiful girl in her teenager. Shyama is the author, writer or narrator, we can say that, and Shastri is we can say that a kind of priest in that village. Right? So these are four characters which we are going to discuss in this lesson. And what does the narrator of this story wants to say with the help of this lesson? Let me tell you clearly. It is a very interesting story that showed the manipulations done by the narrator to bring a change in the idealistic view of Ranga about marriage and get him married to an 11-year-old girl whose name is Ratna. इस चैप्टर में ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि किस प्रकार से जो ये होता है ना, रंगा शादी नहीं करना चाहता सॉरी शादी नहीं करना चाहता, तो जो नरेटर है इस चैप्टर का वो एक ऐसी स्टोरी मैनिपुलेट करता है, बनाता है, जिससे वो रंगा को रत्ना से शादी करने के लिए मजबूर कर देता है। रंगा खुद चाहता है कि वह रत्ना से शादी करे, ठीक है ना, जो कि 11 इयर्स ओल्ड है इस चैप्टर के अंदर। ड्यू टू द नरेटर्स मेटिकुलस प्लानिंग, उसकी बहुत बारीक प्लानिंग की वजह से, विद द विलेज एस्ट्रोलॉजर, गांव का जो एस्ट्रोलॉजर है शास्त्री, रंगा अल्टीमेटली गेट्स मैरिड टू रत्ना विद whom he had fallen in love on first sight, जिसके साथ रंगा पहली मुलाकात में उसके प्यार में पड़ जाता है, उसको अपना दिल दे बैठता है रंगा रत्ना नाम की लड़की को, जब वो उसको पहली बार देखता है। तो ये तो था इस चैप्टर का छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ और 3 to 5 लाइंस। राइट, कैरेक्टर्स आर देयर, यू कैन सी दैट। अब मैं आपको सीरियल वाइज बताता हूं कि कहां क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंस, ये चैप्टर स्केच हम लेके चल रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, द विलेज इज फेमस फॉर श्योर मैंगोज। श्योर का मतलब होता है खट्टे, मैंगोज एंड क्रीपर्स। द विलेज इन विच Ranga lives, that village is famous for sure mangoes and creepers। खट्टे आम वहाँ के बहुत फेमस है, और क्रीपर्स बेल होती है एक प्रकार की। ये फर्स्ट पॉइंट था जो हमने चैप्टर आपको समझाया था। सेकंड पॉइंट, रंगा's होम कमिंग। रंगा's होम कमिंग, जो अकाउंटेंट था जिसका बेटा है रंगा, वो अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेजता है, और जब 6 महीने के बाद रंगा पढ़कर वापस आता है तो गांव के लोगों को ऐसा लगता है कि रंगा बहुत कुछ नया सीख करके आया है, जो कि एक अजीब उनकी बात थी। वो इंग्लिश सीख के आया है, तो उसका मतलब फिजिकल अपीयरेंस में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, ऐसा वहाँ के लोग सोचते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। और जब वो गांव लौटता है पढ़ाई पूरी करने के बाद आफ्टर 6 मंथ, तो सारे गांव के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं उसे देखने के लिए। समझ में आ गया ना।
और नरेटर भी वहां पे खड़ा रहता है उस टाइम पे। और जब नरेटर रंगा को देखता है तो नरेटर डिसाइड्स टू गेट रंगा मैरिड। तो वो उसी वक्त ये सोच लेता है कि मुझे हर हाल में रंगा की शादी करवानी है, ठीक है ना। फिर वो रंगा से उसकी शादी के उसके पूछता है कि तुम्हारा शादी करने के बारे में क्या विचार है, तो कहता है कि अभी मेरा ऐसा कोई थिंकिंग नहीं है कि मैं अभी से शादी करूं। उसने कहा ठीक है। फिर वो चला जाता है उनसे आपस में अपने अपने घर। फिर जो नरेटर है हमारा श्यामा, वो अपने मन में फैसला करता है कि कुछ भी हो मैं इस लड़के की शादी करवा के रहूंगा। फिर एक सुटेबल गर्ल वो उसके लिए ढूंढता है और वो लड़की मिल जाती है, कौन? रत्ना, ठीक है ना। उन दोनों की पहली मुलाकात करवाता है वो अपने घर के ऊपर, ठीक है ना। और जब वो रंगा को बुलाता है अपने घर की, तुम मेरे घर आना, जब वो उसके घर आता है तो रत्ना वहां पहले से होती है और वो म्यूजिक बजा रही होती है एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, और उसको देख करके रंगा उसे काफी पसंद करता है। लेकिन नरेटर उससे झूठ बोल देता है कि जिस लड़की को तुम इतना पसंद कर रहे हो उसको, वो वैसे नहीं कहता डायरेक्टली, इनडायरेक्टली उसको इंडिकेशन देता है कि ये लड़की तो मैरिड है। और व्हेन रंगा केम टू नो दैट शी इज मैरिड, तो वो काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि उसे बड़ी मुश्किल से एक लड़की पसंद आई थी और वो भी मैरिड है। फिर वो प्लान पे प्लान बनाते हैं और आखिर में रंगा की रत्ना शादी करवा देता है विद द हेल्प ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, जिसका जिक्र गया है शास्त्री, ठीक है जी। तो ये था हमारा चैप्टर रंगा's मैरिज। नेक्स्ट चैप्टर इज अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। इन दिस लेसन you will come to know about the great scientist Einstein, who just wanted to go away from his current school because he was not interested in the rote learning that had been a part of education in his time, okay, in the schools in which he was studying different school seasons in his life. So Albert Einstein at school, okay। इसमें देखिए पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की। इसमें पहला जो कैरेक्टर है हमारे पास दैट इज अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन है हमारा पहला कैरेक्टर जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड कैरेक्टर इज मिस्टर ब्राउन। मिस्टर BRAUN। मिस्टर ब्राउन जो है वो हिस्ट्री टीचर है, स्कूल के अंदर हिस्ट्री पढ़ाते हैं बच्चों को। सेकंड कैरेक्टर इज एल्सा। ELSA। एल्सा उसकी कजन सिस्टर है अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जो टाइम टू टाइम उससे मिलने आती रहती है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज यूरी। यूरी जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन का फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है उसका, यूरी। एंड द लास्ट कैरेक्टर इज, सॉरी लास्ट नहीं, नेक्स्ट कैरेक्टर इज मिस्टर कोच। मिस्टर KOCH। मिस्टर कोच जो है वो मैथ्स टीचर है, उनको मैथ्स पढ़ाते हैं। एंड ही हैज ग्रेट bonding, great understanding with Albert Einstein. And the last character is Dr. Ernest Weil. Dr. Ernest Weil जो है वो एक newly appointed doctor है। Recently he had completed his studies and doing his practice as a fresher. तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं हमारे पास। दिस चैप्टर स्टार्ट्स विद आइंस्टाइन्स डिसएग्रीमेंट ऑन द रूट लर्निंग। ROT, रूट लर्निंग का मतलब होता है मतलब जिसमें क्राइमिंग, वी कैन से दैट। विद हिज हिस्ट्री टीचर, हिस्ट्री टीचर के साथ उसकी बहस हो जाती है। ही हैड अ आर्गुमेंट विद हिज हिस्ट्री टीचर। एक्चुअली हिज हिस्ट्री टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री and Albert said that sir there is no need of this because whenever we have a need
of such kind of facts we can get with the help of books. So why should we learn all these things? Okay, so इस बात के ऊपर वो एग्री नहीं करता. उसका जो वो है ना जो दोस्त है, दोस्त कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, टीचर, जो टीचर जो है वो एग्री नहीं करता. आप देख सकते हो वहाँ पे ना, और वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो. तो कहता सर इसमें मतलब ऐसी बात नहीं है, मैं मुझे चीज़ें क्रैमिंग करना मुझे पसंद नहीं है. अब आप बताओ, मैं जब मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है तो मैं क्या करूँ. ये यहाँ पर उसका पहली बार अपने टीचर से जो है आर्गुमेंट हो जाता है. मुनीक he wanted to get away from the system of education followed in मुनीक में वो पढ़ रहा है. मुनीक में जो सिस्टम है पढ़ाई का वो उससे खुश नहीं है और वो वहाँ से दूर जाना चाहता है, इन स्विट्जरलैंड. फिर वो एक प्लान बनाता है कि अगर कोई डॉक्टर मुझे एक ऐसी डिग्री दे दे जिसमें ये लिखा हो कि मेरा ना नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, मतलब मेरी जो दिमाग की नसें हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही है, अगर ये लिख कर दे दे तो मुझे 6 महीने के लिए यहाँ से निजात मिल सकता है, मैं कहीं दूर जा सकता हूँ. और वो डॉक्टर अर्नेस्ट वेल की सहायता से एक सर्टिफिकेट बनवा लेता है. लेकिन जब वो सर्टिफिकेट जमा करवाने जाता है उससे पहले उसका हेडमास्टर जो है स्कूल का, वो उससे खुद कह देता है कि हम आपको रस्टिकेट कर रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पढ़ने के लायक ही नहीं. तो वो इससे पहले कि वो उसे निकाले वो खुद ही वहाँ से चला जाता है. वो मतलब वो अपने सर्टिफिकेट दे से पहले वो खुद उसे निकाल देते हैं. और ये सब यूरी, मिस्टर कोच, एल्सा, ये सब चैप्टर्स के अंदर छोटा सा हिस्सा, छोटा सा रोल प्ले करते हैं. थैंक यू, हैव अ गुड डे.